There are many verses in Scripture which speak of this balanced Christian life that we've been talking about. बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो हमें संतुलित मसीही जीवन के बारे में बताते हैं, जिस विषय में हम बात कर रहे थे। Here's another example of this. इसका एक और उदाहरण यहाँ है। You know, when you read a word like this, जब आप इस प्रकार का कोई वचन पढ़ते हो, it's a fantastic challenge. ये एक अद्भुत चुनौती है। Philippians 2:14 फिलिपियो 2:14 and 15. और उसका 15 वचन भी। Do everything without grumbling or disputing or complaining. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद या बिना शिकायत के किया करो। Just think of that one sentence. बस इस एक वाक्य के विषय में सोचिए। Imagine if you did everything in your home, everything. कल्पना कीजिए अगर आप आपके घर में हर चीज, सब काम Every day, हर दिन morning till night, सुबह से लेकर रात तक without ever complaining or grumbling, बिना शिकायत किए, बिना कुड़कुड़ाहट के, from morning till night, सुबह से लेकर रात तक, both you and your husband or wife. आप और आपके पति या पत्नी। Can you imagine what your home will be like? क्या आप कल्पना कर सकते हो आपका घर कैसा होगा? It'll be heaven on earth. वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होगा। You think the devil will allow that? No. क्या आपको लगता है शैतान उसकी अनुमति देगा? No. कभी नहीं। He'll allow something to come up वो कुछ ना कुछ आने देगा to make you grumble about something or complain about something, or this is not done or that is not done. जिसके वजह से आप किसी बारे में कुड़कुड़ाहट करो या शिकायत करो और आप ये सोचो कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, Or some misunderstanding. या कोई गलतफहमी। What a word it is. क्या ही वचन है ये। To do everything without grumbling or complaining. Is this a small thing? कि हम सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना शिकायत के किया करें। क्या ये कोई छोटी बात है? No. नहीं। It says that is the only way, verse 15, और यहाँ लिखा है कि ये इकलौता मार्ग है, 15 वचन, that you can prove you're a child of God. जिससे आप साबित कर सकते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो। Did you read that? क्या आपने उसे पढ़ा है? In the next verse, अगले वचन में, do it like this so that you may prove that you are blameless and innocent children of God. तुम ये इसलिए करो ताकि तुम निर्दोष और भोले परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, इस बात को साबित कर सको। In the midst of a crooked and perverse generation. टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। Now read, as I've often said, read the verse in its context. अब इसे ध्यान से और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इसके संदर्भ में पढ़िए। If you were to ask the average Christian, why do you call the world a crooked and a perverse generation? अगर आप आम मसीही, औसत मसीही से पूछो कि क्यों तुम इस संसार को टेढ़े और हठीले लोग कहते हो, Say it's full because it's full of adultery and terrorism and all that. No, no. और वे कहेंगे क्योंकि वो संसार जो है व्यभिचार से, आतंकवाद से, इन सारी बातों से भरा है, पर ऐसा नहीं। No, no. नहीं नहीं नहीं। In the context, the world is a crooked and perverse generation because they are grumbling and complaining all the time. इस संदर्भ में ये संसार टेढ़े और हठीले लोग इस वजह से है क्योंकि वे निरंतर कुड़कुड़ाहट करते हैं और शिकायत करते हैं। That's what's referred to here. यहाँ उस बारे में लिखा है। Read it in its context. उसे अपने संदर्भ में पढ़िए। In the midst of a crooked and perverse generation that are always grumbling and complaining all the time, you shine as lights in the world. टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जो निरंतर कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, तुम उनके बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो और उसमें जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। Nice to picture God looking down from heaven at the planet Earth. और मैं चित्रण करता था कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे इस पृथ्वी के ग्रह को देखता है। And everywhere he looks, every part of the earth, there are people grumbling and complaining about something or the other. और वो पृथ्वी में जब कभी देखता है, किसी भी हिस्से में वो क्यों ना देख ले, निरंतर कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुड़कुड़ाता है या शिकायत करता है। Grumbling and complaining about their parents or about the government or some new laws or some financial difficulty or वो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं उनके माता पिता के बारे में, सरकार के बारे में, कोई नया नियम आ गया है उस वजह से, या किसी और कठिनाई के बारे में, some sickness or always find
कोई बीमारी या कुछ और चीज, something to grumble or complain about every single day. वो हर दिन कुछ ना कुछ खोजते हैं जिसके वजह से वो कुड़कुड़ा सके, शिकायत कर सके। And this is what God hears. और यही परमेश्वर सुनता है। Darkness, darkness, darkness. But in the midst of this earth covered with the darkness of grumbling and complaining here and there, He's अंधकार अंधकार अंधकार, पर इस पूरे पृथ्वी में जहाँ अंधकार फैला हुआ है, इसके बीच में वो यहाँ वहाँ कहीं जगह पर कुछ देखता है, see some spots of light, कहीं ज्योति चमक रही है। a few of His children, उसके संतान में से कुछ, not all His children, a उसके सारे संतान नहीं, few of His children उसके संतानों में से केवल कुछ, who never grumble or complain about anything, but are always giving thanks for everything. जो कभी किसी बारे में भी कुड़कुड़ाते नहीं, शिकायत करते नहीं, पर निरंतर हर समय वे सारी बातों के लिए धन्यवाद दिया करते हैं। How can we live such a life? हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं? That's how Jesus lived. यीशु इस प्रकार जिया। Here's the answer. उसका उत्तर यहाँ है। Philippians 2, the previous verses, we always read everything in context. फिलिपियो 2 इसके पहले के वचन, और हर समय बाइबल को अपने संदर्भ में ही पढ़े। In context, we can understand it. संदर्भ में हम बाकी वचन भी समझ सकते हैं। The last part of verse 12, work out your salvation with fear and trembling. और 12वें वचन का अंतिम भाग कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Work out your salvation from grumbling and complaining. आपके उद्धार को किस बात से उद्धार है? शिकायत करने से और कुड़कुड़ाने से जो आपको उद्धार है, उस काम को पूरा करो। In the context, that's what it means. उस संदर्भ में यही उसका अर्थ है, With fear and trembling. डरते और कांपते हुए। How can I do that? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? Because God is at work in you. मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, To make you fulfill His good will, which is to do all things without grumbling and complaining. जिसकी वजह से तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको, जो ये है कि तुम सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना शिकायत के किया करो। That's how I see this passage. इस अध्याय को, इन सारे वचनों को मैं इस प्रकार देखता हूँ। So it begins with God working in me. और इसकी शुरुआत होती है कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करता है। Here's the balance. और यहाँ संतुलन है। God working in me, परमेश्वर मेरे अंदर काम करता है, and then I work it out. और फिर मैं उसे बाहर कार्य में लाता हूँ। Then my inner life will correspond with my outer life. फिर मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से मेल खाएगा। I must open myself for God to work in me. It's not me determining, okay, from today onwards I made a resolution. मुझे अपने आप को खोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करे। ये नहीं कि मैं आज से निश्चय करता हूँ कि आज से मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये धारणा बना ली है And I'm going to live a godly life. और मैं एक ईश्वरीय जीवन जीने वाला No, हूँ। you won't accomplish it. नहीं, आप उसे नहीं हासिल कर पाओगे। It'll be just like the resolutions you made in the past. ये जो आपने पहले जीवन में निश्चय किए, ये बिल्कुल उसी के समान बन जाएगा। You need to say, Lord, I cannot live this life. आपको ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु, मैं इस जीवन को जी ही नहीं सकता, But I want you to work in me. पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर काम करो। And whenever the Bible speaks about God working in us, और जब कभी बाइबल बात करती है परमेश्वर हमारे अंदर काम करने के विषय में, it's always referring to the ministry of the Holy Spirit. वो हमेशा पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में बात करती है। And what he's saying there is, let me work in you. और वहाँ वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे अंदर काम करने दो। Listen to the voice of the Spirit पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो and obey those promptings और पवित्र आत्मा जैसे चलाता है उन बातों को मानो and work it out. To work और उसे कार्य में लाओ। out is to do what the Holy Spirit prompts us within. और कार्य में लाना, इसका मतलब ये है कि हम बाहरी तौर पर वो करते हैं जिसे करने के लिए पवित्र आत्मा अंदर से हमें प्रेरणा दे रहा है। And we got to develop the habit of listening to the voice of the Spirit. और हमें इस आदत को विकसित करना है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुना करें, Like Mary. जैसे मरियम ने किया। In those days it was Jesus who was on earth, उन दिनों में यीशु था जो इस पृथ्वी पर था, the second person of the Trinity. त्रिएक परमेश्वर का वो दूसरा भाग था, दूसरा व्यक्ति था। Today it's the Holy Spirit, आज पवित्र आत्मा है, the third person of the Trinity. त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति। But the Holy Spirit speaking, But the Holy Spirit speaking, 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 the Holy Spirit spe
और जब पवित्र आत्मा बात करता है, just like Jesus spoke when he was in Israel. बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु बात किया करता था जब वो इस्राएल में था। But we have to have ears to hear. Why पर हमारे पास सुनने के लिए कान होने चाहिए। did Jesus often say, he who has ears to hear, let him hear? क्यों यीशु मसीह बार बार कहता था कि जिसके सुनने के कान है वो सुने? It's a phrase that comes every now and then. ये एक कथन है यीशु का जो कई बार हम देखते हैं। It's because not everybody has the time or interest in wanting to listen to what the Holy Spirit is saying. उसकी वजह यह है कि हर एक व्यक्ति के पास ना तो समय होता है ना दिलचस्पी होती है ये सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा उससे क्या कह रहा है। We think we can manage on our own, हम सोचते हैं कि हम अपने आप से कर लेंगे and we have to humbly acknowledge, और हमें नम्रता से ये मान लेना होगा, I cannot do it, Lord. मैं ये नहीं कर सकता प्रभु। And one of the reasons why God allows us to fail and fail and fail and fail और एक कारण क्यों परमेश्वर अनुमति देता है कि हम असफल हो असफल हो असफल हो और असफल हो, is to teach us that lesson. कि हमें वो ये पाठ सिखाए You cannot make it on your own. कि आप अपने आप से इसे कर ही नहीं सकते। I used to wonder in those days why God was allowing me to fail and be defeated and defeated and defeated. और मैं उन दिनों सोचा करता था कि क्यों परमेश्वर अनुमति दे रहा है कि मैं असफल रहूं और मैं हारा हुआ रहूं। And I now realize as I look back, even that was serving a purpose. और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उसका भी एक उद्देश्य था। Because God cannot do a work in us until we have come to a complete end of ourselves. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप के बिल्कुल अंत तक ना आ चुके हो। This is a great truth ये एक महान सत्य है that we see many times in the New Testament. जो हम नए नियम में कई बार देखते हैं। I see it pictured in the story of Lazarus, मैं उसको लाजरस की कहानी में भी इसका चित्रण देखता हूँ, who was sick. जो बीमार था। We read when Mary and Martha sent a message to Jesus saying, the one who you love is sick. हम पढ़ते हैं कि मरियम और मार्था ने यीशु को एक संदेशा भेजा ये कहते हुए कि तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार है। Now, if you hear that somebody you love is very sick, you'd go immediately. और अगर आप ये बात सुनो कि आप जिससे प्रेम करते हो वो बीमार है तो आप तुरंत वहां जाओगे। But see how Jesus did it in John chapter 11. Have you noticed it? पर देखिए यीशु ने कैसे किया यूहन्ना इसके 11वें अध्याय में। क्या आपने इसे देखा है? In John chapter 11, यूहन्ना 11 में the sisters of Lazarus, it says in verse 1, John 11:1, was very sick. यूहन्ना 11:1 कहता है कि लाजर बहुत बीमार था। And Mary and Martha sent a message to Jesus saying, Lord, verse 3, he whom you love is sick. और मरियम और मार्ता ने उसे संदेशा भेजा 3 वचन में कि हे प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। He didn't even have to mention the name Lazarus. They knew he'd understand. उन्हें लाजर ये इस नाम का जिक्र तक नहीं करना पड़ा, वे जानते थे कि प्रभु समझ जाएगा। The one you love is sick. जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। Sick means seriously sick. बीमार का मतलब वो गंभीर रूप से बीमार है। And listen to this. और इसे सुने। Verse 6, when Jesus heard this, now if you and I heard it, we'd rush. 6 वचन में लिखा है जब उसने ये सुना, अगर आप और हम इसे सुनते तो हम दौड़कर वहां जाते। When Jesus heard this, he stayed जब उसने सुना तो वो उसी स्थान पर रहा। 2 more days in the same place. 2 और दिन वो उसी स्थान पर ठहर गया। Jesus acted so contrary to the way other human beings react. जब दूसरे मनुष्य जिस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं उससे यीशु मसीह ने बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। He heard that the one whom he loved is sick. Is okay, then we better stay here 2 more days. उसने ये सुना कि जिससे मैं प्रीति करता हूँ वो बीमार है और उसने कहा ठीक है अब मुझे 2 दिन और यहीं रुकना है। That's God's way. God says, my ways are not your ways. ये परमेश्वर के मार्ग है। परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। My ways are as different from your way of acting as heaven is above the earth. मेरे काम करने के मार्ग तुम्हारे मार्गों से बिल्कुल उतने ही अलग है जितना स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊंचा है। What was he waiting for? वो किस लिए इंतजार कर रहा था? He was waiting for Lazarus to die. वो लाजरस के मरने का इंतजार कर रहा था। And I get a spiritual lesson there. और वहां से मैं एक आत्मिक पाठ सीखता हूँ।
that Jesus was waiting for Lazarus to become totally incapable of doing anything. यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा था कि लाजर अपने आप के लिए कुछ भी करने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो जाए या बिल्कुल भी काबिल ना हो, उस समय का वो इंतज़ार कर रहा था। Then he said, I'll come and do something for you. It has a फिर वो कहता है कि अब मैं आकर तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। spiritual lesson for us. उसमें हमारे लिए एक आत्मिक पाठ है। As long as Lazarus was struggling to live, जब तक कि लाजर जीने का संघर्ष कर ही रहा था, he said, no, I can't come. उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, Not yet ready. मैं अब तक तैयार नहीं हूँ। And day after day he sinks and finally he can't even lift a little finger. और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है, जब तक कि वो एक छोटी उंगली भी नहीं उठा पाता। And then he dies. Then और फिर उसकी मृत्यु होती है, he can do nothing. And just to make sure he's dead, और फिर वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, they put him in the tomb and he's there for 4 days. वे उसे उस कब्र में रखते हैं और वो 4 दिन उस कब्र में होता है। And then Jesus comes फिर यीशु आता है and says, Lazarus, come forth. And he rises up. और वो कहता है लाजर बाहर आ, और वो जी उठता है। This I discovered is the way the Lord wants to work with me. ये मैंने पाया है कि इस प्रकार परमेश्वर मेरे साथ भी काम करना चाहता है। I cry to him, Lord, please come and help me. मैं उसे पुकारता हूँ, प्रभु कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए, I need help, I'm sick. मुझे सहायता चाहिए, मैं बीमार हूँ। He says, no, वो कहता है नहीं, I've got to wait. मुझे रुकना होगा। Don't you love me? I'm the one you love. प्रभु क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? मैं वो हूँ जिससे आप प्रेम करते हो। Come and help me. No, आकर मेरी सहायता कीजिए। नहीं, I've got to wait for some more time. Do you wonder why the Lord's waiting? मुझे और कुछ समय रुकना होगा। क्या आप कल्पना करते हो क्यों प्रभु इंतजार कर रहा है? Not answering some of your prayers. क्यों आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहा? You haven't died yet. You're आपकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है, sick. आप बीमार हो। I know you're sick. मैं जानता हूँ तुम बीमार हो। Sickness is bad, but बीमार बुरी बात है, बीमारी बुरी बात है, He's waiting for you to die. पर वो इंतजार कर रहा है आपके मरने का। I mean spiritually, मेरा मतलब है आत्मिक तौर पर, inwardly. अंदरूनी तौर पर। That means when you come to the point where you cannot do anything and you know you cannot do anything. इसका मतलब आप जब उस जगह आते हो जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते और आप जानते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। Because this is the principle with which God works. क्योंकि यही सिद्धांत है जिससे परमेश्वर काम करता है। He waits until we give up वो इंतजार करता है जब तक हम बिल्कुल हार नहीं मान लेते, on thinking that we can manage it. Because ये सोचने से कि हम अपने आप से कर लेंगे। if we overcome in our own ability, we will take the credit for it. क्योंकि अगर हम अपने ही क्षमता में जीत हासिल करेंगे, विजय हासिल करेंगे, तो उसका श्रेय भी हम ही लेंगे। Managed to come to that life मैं इस जीवन में आने में सफल हो गया हूँ where I never grumble or complain. जहाँ मैं कभी शिकायत नहीं करता, कभी कुड़कुड़ाहट नहीं करता। And that won't be victory. और वो विजय नहीं होगा। See, to grumble and complain is like 100-foot pit. शिकायत करना और कुड़कुड़ाना ये एक 100 फीट के गड्ढे समान है। And here I am in this 100-foot pit और यहाँ मैं 100 फीट के एक गड्ढे में फंसा हूँ called grumbling and complaining. जिसका नाम है शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। And I get delivered out of that और वहाँ से मैं छूट जाता हूँ, वहाँ से मैं बच जाता हूँ and fall into a 1,000-foot pit called spiritual pride. और वहाँ से मैं 1000 फीट के गहराई के गड्ढे में गिरता हूँ जिसका नाम है आत्मिक घमंड, आत्मिक अहंकार। Is that victory? क्या ये विजय है? That's what happens to a lot of people. यही कई लोगों के साथ होता है। They get victory over some dirty habit किसी गंदी आदत से उन्हें विजय मिल जाता है and then they fall into a much deeper pit called spiritual pride. और फिर वो ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरता है जिसका नाम है आत्मिक घमंड, They don't even realize it. और वो उसको समझ भी नहीं पाते। And God doesn't want to give us that type of victory because that's a defeat. और परमेश्वर हमें इस प्रकार का विजय नहीं देना चाहता क्योंकि ये तो एक हार है। He wants to bring us to a victory where I will not fall into that pit called pride. वो हमें एक ऐसे विजय में लाना चाहता है जहां हम उस घमंड के गड्ढे में ना गिरे। And that the only way he can do that is by allowing us to repeatedly fail. और इकलौता मार्ग जिससे वो ये कर सकता है वो ये है कि वो हमें बार बार असफल होने दे Till we come to an end of ourselves. जब तक हम अपने आप के बिल्कुल अंत तक ना पहुंच जाए।